Hello one and all. Here are second part of top 50 most probable questions for NTSE aspirants as well as for class 10th students. So be ready, be smart and be noticed and try to break the barriers of knowledge. Without wasting our time, I would like to ask question number 1 from acid, base and salt and metals and non-metals. Here is question number 1. The higher the pH, the lower is the hydronium ion concentration. Now, what is hydronium ion? Hydrogen ion can't exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous or hydronium ion or H3O plus charge. Second one question is mixing water with acids dash hydronium ion concentration increase or decrease? डेफिनेटली डिक्रीज. जब एसिड में पानी मिलाया जाए तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है. थर्ड वन क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर? आपने देखा होगा आपके घर में टैप वाटर होता है, बोरवेल का वाटर होता है, तो सबसे अच्छा जो वॉशिंग के लिए जो सबसे अच्छा वाटर होता है वो टैप वाटर होता है, बोरवेल का वाटर नहीं होता. ये वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला. वॉशिंग सोडा salt is used to remove hardness of water. Question number 4. How many water of crystallization are there in copper sulfate? CuSO4 के साथ number of molecules पानी के कितने होते हैं? There are 5 water molecules present in copper sulfate. The next one question is, at what temperature POP is formed? Plaster of Paris कितने temperature में form होता है? That is 373 Kelvin. Our next question is, which substance is used to make borax? कौन सा substance borax बनाने में use होता है? That is washing soda. Next one question is, which gas is liberated at the anode and chlor-alkali process? कौन सी गैस है? chlor-alkali process है और एनोड में है. एनोड में नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होते हैं. सो हियर इज chlorine gas is liberated at the anode in chlor-alkali process. Which gas is liberated at the cathode in chlor-alkali process? Hydrogen, because of this is positive ion. Next one is, the solution of common salt is called what? Yes, that is brine. Next one is, which NaCl compound used in soda acid fire extinguisher? कौन सा NaCl compound सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है? That is baking soda. Baking soda. The next one question is, you know what is the formula for baking soda? Baking soda NaHCO3, that is sodium bicarbonate also. Question number 11, the acid present in vinegar is? Acid present in vinegar is acetic acid. हमारी डेली लाइफ में हम इसे यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव. सेकेंड वन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज इज? कौन सा एसिड होता है? विटामिन सी तो होता ही है, साइट्रिक एसिड. एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज इज साइट्रिक एसिड. द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड इज टार्ट्रिक एसिड. द एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क इज lactic acid. And the acid present in ant and nettle sting is, that is methanoic acid. So do you know what is nettle sting? Nettle is a herbaceous plant which grows in wild. Its leaves have stinging hairs which causes painful sting when touched accidentally. So here is methanoic acid present. Due to this only we feel itching and pain. Question number 16, the acid present in tomatoes is oxalic acid. Next one, the nettle sting can be cured by rubbing dash leaves. कौन सी लीव्स को रब किया जाए कि नेटल स्टिंग के पेन और इचिंग से हम
क्योर हो सकते हैं, दैट इज ऑफ डॉग प्लांट लीव्स। डॉग प्लांट भी क्या है, एक वाइल्ड प्लांट है जो जनरली इस नेटल प्लांट के साथ ही उसके साथ ही वाइल्डली ग्रो करता है। द नेक्स्ट वन इज टूथ डीके स्टार्ट्स एट पीएच ऑफ। आपके दांत डीके होना शुरू होते हैं किस पीएच लेवल पे, 5.5 पे। द इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से एनेमल बनता है। नेक्स्ट वन, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ येलोइश एंड वाइट क्लाउड्स ऑफ विच एसिड। वेनस में जो येलोइश और वाइट क्लाउड्स अपीयरेंस होता है वो किस एसिड की वजह से होता है, दैट इज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 21, द बॉडी वर्क्स बिटवीन द पीएच ऑफ। हमारी बॉडी वर्क करती है पीएच पे 7 to 7.8 के बीच के पीएच पे हमारी बॉडी वर्क करती है। पीएच ऑफ एसिड रेन इज पीएच, राइट। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज पीएच। पीएच इज जस्ट अ concentration, potential या power of hydrogen ion concentration. The pH of acid rain is 5.6. Toothpaste are generally what, acidic or basic in nature? That is basic in nature. That's why हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में या नाइट, एट नाइट। वाई, बिकॉज ऑफ हम जो भी इनटेक करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी हम वैसे भी हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, वो तो एसिडिक है ही, प्लस हम जो भी खाते हैं वो एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, एट दैट मोमेंट हम हमारे माउथ को न्यूट्रल करते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए और हाइजीन के लिए भी अच्छा होता है। द गैस्ट्रिक जूस हैज़ pH ऑफ 1.2। गैस्ट्रिक जूस का pH 1.2 होता है। लेमन जूस का pH 2.2 होता है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, P in the pH stands for dash in German। P मीन्स पावर होता है, लेकिन जर्मन में इसे पोटेंस कहते हैं। व्हाट, पोटेंस। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वाटर का 7 होता है, pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। और हमारी बॉडी भी इसी के बीच 7 to 7.6 और 8 के बीच में वर्क करती है। शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड व्हाट, लस्ट्रस, मेटेलिक लस्टर। विच ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। कौन सा ऑक्साइड है जो फॉर्म होता है आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन पे, Fe3O4, Fe3O4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी होती है, लस्ट्रस होता है, सोनरस साउंड होता है, और जब उसको शीट में कन्वर्ट किया जाए तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, दैट इज मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थीन वायर। जब उसको थीन वायर में कन्वर्ट किया जाए या उसको प्रोसेस किया जाए, एट दैट मोमेंट दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 ग्राम गोल्ड उसको बीटन किया जाए, कैन बी बीटन इनटू हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग वायर, दैट इज ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक का लंबा तार हम गोल्ड से बना सकते हैं, वो भी 1 ग्राम गोल्ड का यूज करके। द नेक्स्ट वन इज विच इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ऑब्वियसली गोल्ड, क्योंकि हम 1 ग्राम गोल्ड का यूज करके 2 किलोमीटर तक का थीन वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34, द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑब्वियस मरकरी। नेक्स्ट वन इज नेम द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे अदर वीडियोस में मिल जाएंगे, जिसमें हमने इसके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ऑब्वियसली डायमंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच नॉन मेटल हैज इट्स ओन एलोट्रॉप। किसके अपने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के होते हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बेस एंड एसिड इज कॉल्ड, लास्ट वीडियो में भी देखा था हमने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें हमने जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया था। दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बेस एंड एसिड, ऐसे ऑक्साइड जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, दैट इज नोन एज
amphoteric oxides. Next one, aluminium reacts with sodium hydroxide to form dash and hydrogen gas. एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाती है और इट्स फॉर्मूला इज NaAlO2. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40. In which medium are sodium and potassium kept to prevent their vigorous reaction with the oxygen? केरोसिन में रखे जाते हैं सोडियम और पोटेशियम क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं. ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इनसाइड केरोसिन. द नेक्स्ट वन इज 41. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड. एक थिक ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर्म करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? दैट इज एनोडाइजिंग. व्हाट? एनोडाइजिंग. The next one is sodium and potassium always react with. अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन कोल्ड, हॉट और सिंपल वाटर. कौन सा, कोल्ड या हॉट? किस तरह का पानी होता है वो जिसमें सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं? दैट इज ऑफ कोल्ड वाटर. एंड नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट और कोल्ड वाटर. देखो सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं वेयर एज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. एक्वा रीजिया. Aqua regia is freshly prepared mixture of concentrated dash and concentrated dash in the ratio of 3:1. That is of aqua regia. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो गोल्ड होता है, आपने कई सारी ऐसी रॉबरीज और वो देखे हैं जिसमें एक्वा रिजिया सॉल्यूशन लेकर ही कई सारे लोग आते हैं और गोल्ड ऑर्नामेंट्स को वॉश करने के नाम से भी वो इस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं. ये मिक्सचर प्रिपेयर होता है HCl और HNO3 का और इसका रेशियो होता है 3:1. The next one is dash is a list of metal arranged in the order of their increasing reactivity. That is reactivity series. आप ये भी हमारे किसी वीडियो में देख सकते हैं जो हमने पहले इसमें एक्सप्लेन किया था रिएक्टिविटी सीरीज के लिए. आप उससे इजीली लर्न भी कर सकते हैं. The next one question is ionic compounds are not soluble in solvents such as dash and dash. ionic compound soluble नहीं होते. किस तरह के सॉल्वेंट में? केरोसिन और पेट्रोल में. अगर हम यही चीज़ कोवैलेंट कंपाउंड के लिए बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल होते हैं लेकिन पानी में नहीं होते. ionic compounds पानी में डिसॉल्व होते हैं. The carbonates ores are obtained by the process of. कार्बोनेट ओर्स कौन सी प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं? कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो एयर के एब्सेंस में होता है. इट इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 47. द सल्फाइड ओर आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज रोस्टिंग. और जो रोस्टिंग होता है इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एयर. राइट. नेक्स्ट वन 48. ओर्स माइंस फ्रॉम Earth are usually contaminated with large numbers of impurities such as soil, sand are called. What it is called? That is gangue. Ores जब अर्थ से निकाले जाते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जिससे रिफाइनरी प्रोसेस में डालना होता है. तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक सॉइल, सैंड, तो जब ये इम्प्योरिटीज़ के साथ बाहर आता है दैट इज नोन एज गैंग. सिनाबार इज अ ओर ऑफ. सिनाबार किसका ओर है? मर्क्यूरी का. एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज व्हेन सिनाबार इज हीटेड इट गेट्स रिड्यूस्ड टू. क्योंकि ये मरकरी का ओर है तो जब ये रिड्यूस होगा तो ये मरकरिक ऑक्साइड बनाएगा. मर्क्यूरिक ऑक्साइड. राइट. सो आई होप दैट this top 50 series is very helpful for you. All of you will keep updating our next part. So keep in touch with us. Till then, goodbye. Thanks for watching.